Hello students, our new topic is method of reduction of order. So we know about homogeneous linear ordinary differential equation of higher order. So basically this method is used to obtain the second solution of a homogeneous linear ordinary differential equation of second order if one solution is known. So basically it says that अगर आपको वन सॉल्यूशन पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का तो आप सेकेंड सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एंड दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर. सो सिंस द सेकेंड linearly independent solution is obtained by solving a first order ordinary differentiable equation. So this method is known as reduction of order. So first of all, what is our homogeneous equation? Y double dash plus px into y dash plus qx into y is equal to 0. You know about this is our standard form of homogeneous linear differential equation. Y double dash plus px plus y dash plus qx into y is equal to 0. So let y1 be the solution of equation 1. That is y1 is already given in example. We are knowing about y1. हमें पता है what is y1 which is आपको एग्जाम्पल में ऑलरेडी दिया होगा. आपको y1 सॉल्यूशन दिया होगा, उस पर से आपको दूसरा सॉल्यूशन दैट इज y2 फाइंड आउट करना है बाय दिस मेथड. ओके, सो लेट y1 बी द नोन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. सो पुटिंग y इज इक्वल टू y1 इंस्टेड ऑफ y यू हैव टू पुट y1. सो y1 डबल डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, y is equal to y1. So y1 double dash plus px y1 dash plus qx y1 is equal to 0. Now what is our second solution? y2. So let y is equal to y2 is equal to u into y1 be the second solution of equation 1. Then integration whole part. Then आपको only these two formula remember करना है. Okay, what are the two formula? Formula of u. u is equal to integration 1 upon y1 square e raised to integration minus p dx into dx. ठीक है, and y2. So y2 is equal to y1 integration 1 upon y1 square e raised to minus p dx dx. ओके, सो आप यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली ये क्या है आपका u. तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 इंटू u. ठीक है, y2 इज इक्वल टू y1 इंटू u. और व्हाट इज u? Integration 1 upon y1 square e raised to minus p dx into dx. Okay, so here y2 upon y1 is equal to u. That doesn't mean it is constant number. So here y1 and y2 both are linearly independent solution. I recall the method. In method of reduction of order आपको y1 ऑलरेडी दिया होगा एग्जाम्पल में. उस y1 पे से आपको क्या फाइंड करना है, सेकेंड सॉल्यूशन y2. कैसे फाइंड करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, y1 पुट कर देना है. ठीक है, तो आपका वो ये हो जाएगा सॉल्यूशन. और आपको y1 पता है तो आप क्या फाइंड करोगे, u की वैल्यू, और फिर क्या पुट करोगे, y2 के अंदर u की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. इफ y1 इज इक्वल टू x इज वन सॉल्यूशन ऑफ x square y double dash plus x y dash minus y is equal to 0. Find the second solution. So in example y1 is equal to x, already given that your y1 that is first solution जो already दिया हुआ है आपको, y1 is equal to क्या दिया आपको, x, that is one solution of your equation. तो find the second solution. तो write down solution. हमारा इक्वेशन क्या है, x square y double dash plus x y dash minus y is equal to 0. What is our standard form? y double dash प्लस पी एक्स प्लस क्यू. तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को यहां से रिमूव करना पड़ेगा. सो री राइटिंग द इक्वेशन. ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर से क्या करूंगी, डिवाइड कर देंगे. तो क्या मिलेगा, वाई डबल डैश 1 अपॉन एक्स बिकॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई is equal to 0. Give it equation number 1. Then हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था,
comparing equation 1 with the standard equation. वो क्या था, y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है. नाउ कंपेयर करो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए. सो व्हाट इज अ px, 1/x. सो px इज इक्वल टू 1/x. नाउ नेक्स्ट स्टेप, लेट y2 इज इक्वल टू u इंटू y1. अभी मैंने आपको बताया y2 इज इक्वल टू क्या है, u y1. बी द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. ठीक है. पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन रहेगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसके बाद पी एक्स इज इक्वल टू 1/x, देन y2 इज इक्वल टू u y1 विद द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2. एंड वेयर u, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ u, अभी हमने देखी क्या थी, इंटीग्रेशन 1/y1 स्क्वायर e रेज टू माइनस पी डी एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है. ये p u की फॉर्मूला है हमारी, और y1 क्या है हमारे पास, x. हाउ, ऑलरेडी गिवन इन एग्जाम्पल y1 इज इक्वल टू एक्स. सो अभी हम y1 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, x. तो हमारा u क्या मिलेगा हमें, u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंस्टेड ऑफ y1 x स्क्वायर e रेज टू व्हाट इज p, 1/x dx और dx. ठीक है. आप चाहो तो इसकी वैल्यू अलग से फाइंड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ 1/dx. क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x. सो e रेज टू log x रेज टू -1 विच इज 1/x. तो अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो u इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/x dx. ठीक है. हो गया. सो अभी यहाँ पे क्या मिल गया, u इज इक्वल टू 1/x क्यूब dx. तो इसको हम लिख सकते हैं विच इज इम्प्लाइज u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x रेज टू -3 dx. तो वो हमारा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3, दिस इज द फॉर्मूला, x रेज टू n इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1/n+1 प्लस c. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस x रेज टू -3 प्लस 1 विच इज -2/-2 हो गया. तो ये x रेज टू -2 नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा, u इज इक्वल टू -1/2x स्क्वायर. हमें वैल्यू मिल गई u की, और हमारा y2 क्या है, y2 इज इक्वल टू u y1. तो u क्या है, -1/2x स्क्वायर, एंड व्हाट इज y1, ऑलरेडी गिवन x. ठीक है. 1x कैंसल, तो -1/2x विच इज अवर सेकेंड सॉल्यूशन. रिपीट द एग्जाम्पल. If y1 is equal to x is one solution, then find the second solution. So what is our method? First of all, write the equation in standard form. Then let y2 is equal to u y1 be second solution. Then find the value of u and put into y. That is your second solution. Let's take another example. If y1 is equal to x square is one solution of x square y double dash minus 4xy dash plus 6y is equal to 0, where x is greater than 0, find the second solution. Also determine the general solution. Okay, so find the solution. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई है y डबल डैश के साथ, एक्स स्क्वायर. सो हमें इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा. सो री राइटिंग द इक्वेशन, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा.
तो क्या मिलेगा, y डबल डैश माइनस 4, यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से, तो 4/x y डैश प्लस 6/x² y इज इक्वल टू 0. Then give it equation number 1, comparing with standard form. Y double dash plus px y dash plus qx y is equal to 0. Comparing to this, what is our p? We need p. P is equal to minus 4/x. Now let y2 is equal to u y1 be the second solution of equation 1. Okay, and u is equal to what, where 1 upon y1 square e raised to minus p dx dx. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है जैसे u की फॉर्मूला. नाउ मैं पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ. e raised to minus p dx. What is our p? Minus 4/x. Put instead of p. So e raised to minus 4 outside 1/x dx. And you know the integration of 1/x, which is log x. This for power. So e raised to minus log plus log x raised to minus 4. Okay. So x raised to minus 4. So 1 upon x raised to 4. So whole this answer is 1 upon x raised to 4. So u is equal to, what is our y1? Already given, x square. 1 upon x square. This value is 1 upon x raised to 4. y1 is given in example. So exam में what is y1 करके confuse मत होना. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 upon x raised to, हाँ ये क्या मिला हमें, x raised to minus 4. ठीक है, यहाँ पे क्या था, p is equal to minus 4/x. सो हमारी एक मिस्टेक है, हमने देखा ही नहीं, यहाँ पे भी माइनस लगाना है आपको. सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. इट मीन्स योर आंसर इज x raised to 4. सो x raised to 4. ठीक है, एंड y1 x स्क्वायर, बट यहाँ पे क्या है, y1 स्क्वायर. मैं वापस लिख देती हूँ. u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y1 स्क्वायर. व्हाट इज y1 स्क्वायर, x स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, तो x रेज टू 4. हमारा y1 x स्क्वायर है, बट व्हाट अबाउट y1 स्क्वायर, सो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा. सो 1 अपॉन x रेज टू 4 एंड दिस वैल्यू इज x रेज टू 4 dx. सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन dx, वो क्या होता है x. तो u की वैल्यू क्या मिल गई, x. ठीक है, अभी तक सम खत्म नहीं हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, सेकेंड सॉल्यूशन. y2 इज इक्वल टू u इंटू y1. व्हाट इज u, x, एंड y1 क्या है हमारा, x स्क्वायर. सो इक्वल टू x क्यूब. नाउ व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज y is equal to, what is our y1, x square. So add a constant, c1 x square, and what is y2, x cube. तो c2 x cube. जनरल सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, खाली कांस्टेंट को ऐड करना है. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. इफ y1 is equal to sin x upon x is one solution of xy double dash plus 2y dash plus xy is equal to 0. Find the second solution. Okay, so solution, what is our first step, क्या करते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे x मल्टीप्लीकेशन में, तो उसको डिवाइड कर देना है. सो री राइटिंग द इक्वेशन, क्या होगा, y डबल डैश x से डिवाइड करना पड़ेगा.
प्लस 2/x वाई डैश प्लस यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा, खाली 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो p क्या है हमारा 2/x. कैसा आया, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन. क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये याद रखना है आपको. तो p हमें मिल गया. नाउ लेट y2 इज इक्वल टू u y1 बी द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. ओके, तो वेर u इज इक्वल टू, अभी आपको फॉर्मूला रिमेन होनी चाहिए 1/y1² e रेज टू माइनस पी डी एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, यहाँ पे एक p पॉजिटिव ही है, अगले एग्जाम्पल में माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, याद रखना. सो अभी मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, e रेज टू माइनस पी डी एक्स. तो e रेज टू व्हाट इज और p 2/x dx. सो e रेज टू माइनस 2 1/x dx. सो e रेज टू माइनस 2 log x. अभी e रेज टू log x रेज टू माइनस 2 1 फंक्शन, सो x रेज टू माइनस 2 1/x². p की वैल्यू क्या मिली 1/x². ठीक है, अब इसके अंदर पुट कर देते हैं. तो u इज इक्वल टू व्हाट इज y1 sin x अपॉन x. सो यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा sin x अपॉन x. तो x रेज टू स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, बिकॉज y1 स्क्वायर है, याद रखना. व्हाट इज अवर दिस वैल्यू 1/x². ठीक है, x² कैंसिल. व्हाट अबाउट 1/sin. व्हाट इज द फॉर्मूला 1/cos x²x. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बचेगा इंटीग्रेशन 1/sin square x dx and 1/sin square is equal to cos x². Now what is integration of cos square x? माइनस cot x. ठीक है, सो ये याद रखना, हमारा u इज इक्वल टू माइनस cot x. नाउ y2 इज इक्वल टू y1 इंटू यू. सो व्हाट इज y1, एग्जाम्पल में है sin x अपॉन x u माइनस cot x. ठीक है, सो cot इज इक्वल टू व्हाट इज अवर फॉर्मूला माइनस cos x अपॉन sin x. फॉर्मूला याद होगी आपको. सो मिलेगा क्या cos x अपॉन x y2. ठीक है, y2 मिल गया. नाउ अगर जनरल सॉल्यूशन लिखना हो तो so general solution is y is equal to c1 your y1. What is y1? Sin x upon x minus y2 c2 cos x upon x. ठीक है, अब जब भी ये होगा ना तो पॉजिटिव में लिखना है हमें जनरल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं और c2 डैश कर देते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर c2 डैश इज इक्वल टू माइनस c2 अज्यूम कर दिया. सो दिस इज द मेथड ऑफ रिडक्शन. क्या करते हैं हम, अगर हम मुझे y1 पता है तो मैं क्या फाइंड कर सकती हूँ y2. ठीक है, इट मीन्स इन एग्जाम्पल ऑलरेडी y1 इज गिवन. आपको ऑलरेडी y1 की वैल्यू दी होगी, आपको क्या फाइंड करना है y2 विच इज सेकेंड सॉल्यूशन. रिकॉल द मेथड. सो दिस वन इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू y1 हो गया. फिर क्या करना है हमें, लेट y2 इज इक्वल टू u y1 बी द सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1. सो u इज इक्वल टू योर फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर u, इंटीग्रेशन 1/y1² e रेज टू माइनस p dx इंटू dx. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ y2, y1 integration 1/y1² e raised to minus p dx into dx. Okay, so this is called method of reduction of order. ठीक है, so in this method y1 already known, then from that
we find out second solution. It means first solution is given. We can easily find out the second solution for homogeneous linear ordinary differential equation.